Yes, beta. The second part, page 119, we have read yesterday that she got into the bus and then when she came into the bus, the conductor, who was a very jolly sort of person, very funny or type of person, he was always fond of joking with others. He called her as madam, and it was a slack time. Slack time means the time of depression when the work was not going on much, and only 6 to 7 passengers were there in the bus, and they all were looking at Veli and laughing with the conductor when she entered, and when the conductor greeted her in a very good manner, calling her as ma'am, and they all were laughing at the talking. She felt a little bit shy, and avoiding their eyes, she went to the seat that was offered to her by the conductor. Now come to page 120. Again, the conductor was in a very good mood and he just asked Veli, may we start now, ma'am? The conductor asked smilingly, मुस्कुराते हुए से पूछता है, as if he was taking her permission whether they should start or not. Then he blew his whistle twice and the bus moved forward with a roar. Then he gave the whistle and the bus started moving with the roar, means with the noise. It was a new bus and its outside painted a gleaming white with some green stripes along the sides inside. The overhead bars shone like silver. We are told about the condition of the bus. It was a new bus and it was painted with shining white color with green stripes along the sides. And inside the overheads bars shone like silver. Silver की तरह white बिल्कुल वो चमक रही थी अंदर की भी उसकी bars. And directly in front of Valley, above the windshield, there was a beautiful clock, and there was clock also on the windshield, and the seats were soft and luxurious. Because it was her first experience, she felt that the seats were also very soft and luxurious. Otherwise, it was a new bus, so the seats were good. Valley devoured everything with her eyes. See the word used by the writer here, devoured होता है to eat greedily. किसी चीज को आप लालच के वे में जल्दी जल्दी में जब खाने की कोशिश करते हो, जैसे आपका मन टेम्प्ट हो जाता है, बट हेयर आईज उसकी टेम्प्ट हो गई, मतलब शी वॉज लुकिंग हेयर एंड देयर, ऑब्जर्विंग ईच एंड एवरीथिंग एंड एंजॉइंग दैट scene. Because the bus was also new, she was first time traveling in the bus, she was enjoying each and everything. Very devoured everything. Devoured here means to enjoy avidly, fully. She was enjoying and looking as if she was eating all those things with her eyes. That's why the word is used here, everything with her eyes. But when she started to look outside, she found her view cut off by a canvas blind that covered the lower part of her window. But when she looked outside, she felt that her view was curtailed somewhere. She was not able to see outside because she was only 8 years old, not that much in height कि उसको सीट में से बैठने के बाद वो सारा कुछ बाहर का सीन नजर आए, और उसको लग रहा था कि उसके ऊपर जो ब्लाइंड कर्टन टाइप उन्होंने कई बार जो उसका मिरर ग्लास होता है विंडो का, उसको हाफ पार्ट जो है उसको पेंट किया होता है ब्लैक या कुछ ऐसे कलर से, तो शी वॉज नॉट एबल टू सी आउटसाइड प्रॉपरली. It was covered with the blind, lower part of the window was covered. So she stood up on the seat and peered over the blind. तो अब उसने क्या सोचा कि वो खड़ी होकर देखती है, बिकॉज शी वॉन्टेड टू एंजॉय द सीन आउटसाइड. तो बैठकर उसको दिखाई नहीं दे रहा था, तो शी स्टूड अप ऑन द सीट. वो सीट के ऊपर खड़ी हो जाती है और बाहर झांकना शुरू कर देती है. पियर्ड ओवर द ब्लाइंड, उस कवर्ड पार्ट के ऊपर से वो बाहर की तरफ देखती है. द बस वॉज नॉट गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ ए कैनल एंड द रोड वॉज वेरी नैरो. बहुत तंग रोड थी, छोटी सी रोड थी, बहुत विड्थ के में नहीं थी, और कैनाल के साथ साथ किनारे के ऊपर बस चल रही है. ऑन द साइड देयर वाज द कैनाल एंड बियॉन्ड इट पाम ट्रीज, ग्रासलैंड, डिस्टेंट माउंटेन्स and the blue sky. Note down the things what she noted down. क्या उसने बाहर का सीन कैसे देख रही है, वो उसको क्या दिखाई दे रहा है कि on one side there was the canal
and beyond it palm trees were there, grasslands, distant mountains, and the blue sky. दूर दूर तक उसको sky blue जो है वो नजर आ रहा है. On the other side was a deep ditch. Ditch क्या होती है? खाई, कि बहुत गहरी खाई थी दूसरी तरफ. एंड देन एकर्स एंड एकर्स ऑफ ग्रीन फील्ड्स, और बहुत दूर दूर तक एकड़ एकड़ तक उसको ग्रीन फील्ड्स जो थे वो नजर आ रहे थे. एंड वेयर एवर हर आईज वर गोइंग शी वॉज लुकिंग ग्रीन 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 एज फार एज द आई कुड सी, कि जहां तक भी उसकी नजर जा रही थी शी कुड सी द ग्रीन फील्ड्स ऑन दैट एरिया. एक साइड पर कैनाल थी, पाम ट्रीज थे, माउंटेन्स थे, ग्रासलैंड्स थे, ब्लू स्काई उसको दिख रहा है, और दूसरी तरफ डीप डिच के साथ उसको दूर दूर तक ग्रीन फील्ड्स जो थे वो नजर आ रहे थे. Oh, it was all so wonderful. She felt very happy and got excited that everything was looking very wonderful, very enjoyable scene she was having. Suddenly, she was startled by a voice. Listen, child, said the voice, you should not stand like that. Sit down. और अचानक उसको एक आवाज सुनाई देती है, because she was enjoying, she lost in that beauty of the outside and she was enjoying it. Suddenly she heard the sound, someone was saying कि आप खड़े मत हो, आप गिर जाओगे. बच्चा है वो सीट के ऊपर खड़ा है, और जैसे ही बस को जंप लगेगा या सडन ब्रेक लगेगी तो वो गिर सकती है ना. तो ऐसे किसी ने कंसर्न लेते हुए, कि उसकी टेंशन लेते हुए बच्चे ने उसको कह दिया कि लिसन चाइल्ड, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट. Sit down. Please note down the sentences given in the inverted commas. What we call it? क्या है ये ग्रामर पार्ट में? हम किस टॉपिक के अंडर लेते हैं इसको? Reported speech में direct form is given to you in the inverted commas, and when we remove the inverted commas and give the speech in the other person, that becomes indirect speech. So you are given these sentences as the conversation was going on. So it was told to the girl Valley that she should not stand, she should sit down. Sitting down, she looked to see who had spoken. She sat down and started looking who was telling all this. It was an elderly man who had honestly been concerned for her, but she was annoyed by his attention. See her nature, she felt irritated because that elderly man, when she looked that there was an elderly man who was telling her to sit down, she sat down, but she felt irritated कि वो आदमी क्यों इतनी टेंशन ले रहा है उसकी. But the man was really worried. Honestly concerned means he was honestly worried about the girl कि वो खड़ी है और अचानक बस को अगर ब्रेक लगेगी या जो कोई भी झटका लगेगा तो she can fall down. There is nobody here who is a child, she said haughtily. See the answer she gives to that elderly man. बड़े हॉटिली मीन्स प्राउडली शी गेव द आंसर. कहती यहाँ कोई बच्चा नहीं है, आप किसको कह रहे हो बच्चे बैठ जाओ. आई हैव पेड माई 30 पैसा लाइक एवरीवन एल्स. और मैंने भी, कहते आपकी तरह जैसे सबने किराया दिया ना, वैसे ही मैंने भी 30 पैसा किराया दिया हुआ है. आप कौन होते हो मुझे कहने वाले कि बैठ जाओ. शी फेल्ट इरिटेटेड, और उसको आगे से ये जवाब देती है. द कंडक्टर चिम्ड इन. कंडक्टर जो था ही केम इनसाइड नाउ टू इंटरफियर इन देयर कन्वर्सेशन टू गिव हिज ओपिनियन. chimed in means to break into the conversation. किसी दो जने की बातचीत चल रही है, तीसरा बीच में अपना ओपिनियन देने के लिए आ जाता है. Then this word is used with the preposition in. The conductor chimed in, oh sir, but this is a very grown up ma'am. तो आकर क्या कहता है कि आप क्यों टेंशन ले रहे हो, ये बहुत ग्रोन अप मैडम है हमारी. डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रेवल टू द सिटी ऑल अलोन. क्या आप सोच सकते हो कि एक यंग गर्ल या एक छोटी लड़की जो है वो अपना किराया खुद दे सकती है और वो अकेली शहर के लिए ट्रेवल कर सकती है. You can't say like this. She is a grown-up girl. Valley shot an angry glance at the conductor and said, she got angry with the comment of the conductor also, and she started looking, said, I am not a madam. Please remember that, and you have not yet given me my ticket. I am not a madam. पहले तो आप ये बात ध्यान रखो, और दूसरा आपने मुझे अभी तक टिकट तो दी नहीं, पैसे ले लिए, टिकट दी नहीं आपने. I'll remember, the conductor said. मैमे के हर टोन, उसकी टोन का इमिटेट करते हुए, उसको कॉपी कर रहा है, जिस टोन में वो बोल रही है ना उसी टोन में उसको आगे से जवाब देता है. कहता है I will remember to give you the ticket. Everyone laughed and gradually Valley too joined in the laughter, or all the passengers started laughing and she also started laughing. The conductor punched a ticket and handed it to her.
उसने टिकट काटी, एक पंच करा उसको और उसको हैंड ओवर कर दी. जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल. वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर अ सीट? फिर इसका मजाक में इसको कहता है आप कंफर्टेबली बैठो, आपको सीट मिली हुई है. व्हेन यू हैव पेड देन व्हाई डोंट यू सिट ऑन द सीट? कि आप कहते हो कि आपने किराया दिया हुआ है तो फिर सीट पे आराम से बैठो, आप खड़े क्यों हो रहे हो? बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर्ड स्टैंडिंग अप अगेन. फिर से खड़ी हो जाती, कहती इससे आपको क्या, मैं खड़े होना चाहती हूँ तो आपको क्या, ये मेरी मर्जी. बट इफ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल and hurt yourself when the bus makes a sharp turn or hits a bump. इसको समझाने की कोशिश करता है कि जब आप खड़े हो जाओगे और आप बस किसी तरह अचानक कोई टर्न लेती है या अचानक ब्रेक लगती है या कोई बम्प आ जाता है तो आप गिर सकते हो. दैट्स वाई वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड. कि यही रीजन है कि हम आपको बार बार कह रहे हैं कि आप बैठ जाओ, खड़े नहीं हो. आई एम नॉट ए चाइल्ड आई टेल यू, शी सेड इरिटेबली. आई एम 8 years old. फिर से उनको क्या जवाब देती है कि आप मुझे बच्चा मत कुछ समझो. आई एम नॉट अ चाइल्ड, आई एम 8 year old. ऑफ कोर्स, हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years. कहता मैं मूर्ख हूँ जो मैं समझ नहीं रहा, आप तो 8 years old हो, आप बच्चे थोड़ी हो. The bus stopped. Some new passengers got on and the conductor got busy for a time. Next stoppage पे बस रुकी, कुछ और passengers आए and he got busy in giving them the tickets. And afraid of losing her seat, Valley finally sat down. अब उसको लगा कि और passengers आ गए हैं तो कहीं उसकी सीट ना कोई और ले ले, तो बैठ जाती है अपनी सीट पे. An elderly woman came and sat beside her. Are you all alone, dear? She asked Valley as the bus started again. और जो नए पैसेंजर्स आए उसमें एक एल्डरली वुमेन आती है एंड शी सैट बिसाइड हर. उसके पास आकर, डबल सीट होती है ना कई बार, तो वो उसके साथ आकर बैठ जाती है और उससे पूछती है कि आर यू ऑल अलोन, कि क्या तुम अकेली हो? वैली फाउंड द वुमेन एब्सोल्युटली रिपल्सिव. वैली ने जब उसकी तरफ देखा तो उसको लगा कि द वुमेन इज नॉट गुड. रिपल्सिव मीन नॉट लाइकिंग. शी just had the feeling of disliking and hatred for that lady. Why? She looked at her appearance. क्या चीज उसको नहीं अच्छी लग रही? Such big holes she had in her earlobes. कि उसके कानों में इतने बड़े बड़े holes थे. And such ugly earrings in them. और बड़े गंदे से earrings उसने पहने हुए थे उसमें. And she could smell the beetle nut the woman was chewing and see the beetle juice that was threatening to spill over her lips at any moment. कि अपने मुंह में उसने बीटल नट्स डाले हुए थे, जैसे सुपारी सी वो च्यू कर रही थी और उसके जो जूस था, एक तरह से उसका जो स्पिट थूक जो था वो उसके लिप्स के ऊपर घूम रहा था और उसको लगा किसी भी क्षण गिर जाएगा. उसको बड़ा गंदा सा लगा उस लेडी को देखकर एंड शी डिड नॉट लाइक. सी द एक्सप्रेशन ऑफ डिसलाइकिंग शी हैज गिवन. हु कुड बी सोशेबल विद सच ए पर्सन? कि ऐसी लेडी के साथ, ऐसे पर्सन के साथ कौन सोशेबल होगा, मतलब कौन उसके साथ सोशल बिहेवियर की बातचीत करना पसंद करेगा? शी डिडंट लाइक दैट एल्डरली वुमन कि वो उसके साथ बैठे. सीट खाली थी, वो लेडी आकर बैठ गई. यस, आई एम ट्रेवलिंग अलोन, शी आंसर्ड कर्टली. बड़े डिसप्लेयर शो करते हुए, जैसे कि बड़ा उसको गुस्सा सा आया हो, उसको आगे से कहती है हाँ मैं अकेली ट्रेवल कर रही हूँ एंड आई हैव गॉट अ टिकट टू. और मेरे पास टिकट भी है. सबको बताती है. उसको ऐसे लग रहा है कि ये ना सोचे कि बच्चा है और ये बिना टिकट के ट्रेवलिंग कर रही है. हर एक को ये साथ ऐड करके बता देती है कि आई हैव ए टिकट ऑल्सो. यस, शी हैज ऑन हर ओन वे टू टाउन, said the conductor with a 30 paisa ticket. And every time the conductor also adds something. कहता हाँ हाँ ये अपने टाउन के रास्ते पर जा रही है और इसने 30 पैसे की टिकट ली हुई है, क्योंकि उसने कहा ना मेरे पास टिकट है, तो उसको यही लग रहा था कि वो दोबारा बताएगी भी कि उसने 30 पैसे की टिकट खरीदी है. तो कंडक्टर खुद ही ऐड कर देता है दैट शी हैज टेकन टिकट ऑफ 30 पैसा. ओह व्हाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस, सेड वैली. तो उसको गुस्सा आ जाता है, कहती आप अपना काम क्यों नहीं करते, आप क्यों बीच में इंटरफेयर कर रहे हो? बट शी लाफ्ड ऑल द सेम एंड द कंडक्टर लाफ्ड टू. लेकिन वो खुद भी हंसने लग पड़ी और कंडक्टर भी हंस पड़ा. बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विद हर ड्रिवल. लेकिन वो ओल्ड लेडी जो कि उसके साथ बैठी थी, शी केप्ट ऑन डूइंग हर सिली नॉनसेंस थिंग्स. ड्रिवल मीन्स सिली नॉनसेंस थिंग्स. इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रेवल अलोन? कि वो लेडी चुप नहीं करती, वो फिर अपनी बातें करनी शुरू कर देती है और वैसे बीटल च्यू कर रही है. और क्या कहती है कि ये ठीक बात है कि एक अकेले यंग आदमी के लिए ऐसे ट्रेवल करना अकेले में. डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन? कि तुम्हें पता है तुम टाउन में कहाँ जा रही हो? व्हाट इज द स्ट्रीट?
कौन सी गली में जाना है आपको, व्हाट इज द हाउस नंबर, कौन से घर में जाना है आपको, क्या घर का नंबर पता, उससे पूछना शुरू कर देती है कि आप अकेले ट्रेवल कर ले हो, डू यू नो द टाउन, कि आप उसको टाउन के बारे में पता है, आपको उस गली का पता है, आपको उसको घर का पता है कि जहाँ आपको जाना है। उसको लग रहा है ना कि छोटी है, 8 years old छोटा सा बच्चा है, तो ये अपने आप उस टाउन में घर कहाँ ढूंढ लेगा, कहाँ जाना है इसको। यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, वेली सेड, टर्निंग हर फेस टुवर्ड्स अ विंडो एंड स्टेयरिंग आउट। बाहर देखना शुरू कर देती है और उसको क्या जवाब देती है कि डोंट वरी अबाउट मी, यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी, मेरे बारे में चिंता मत करो, आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, कि मैं अपनी चिंता खुद कर सकती हूँ। हर फर्स्ट जर्नी, what careful painstaking elaborate plans she had to make for it. This was the first journey which she had in the bus, and this was very careful because we have seen in the first part that she calculated, recalculated, planned, replanned everything. That means it was very careful journey which she had planned. It was painstaking, she took did many efforts to plan it, and she made elaborate plans for this, to had this journey. She had thriftily, अब उसके पास पैसे कहाँ से आए, और she collected the money, 30 पैसा एक साइड का किराया है, she has to pay 60 पैसा for coming back also, both side उसको देना था। तो she had thriftily saved whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons and the like, and finally she had saved a total of 60 paisas. It's very difficult for a child to resist the temptations. जब आपके पास पैसे हों, और छोटे बच्चे जो होते हैं उनको रेजिस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनके माइंड में हमेशा आता है कि मेरे पास पैसे हैं तो मैं ये चीज़ ले लूँ या ये ले लूँ, खिलौने ले लूँ, कुछ खाने के लिए चीज़ ले लूँ, बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रेजिस्ट, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। बट हाउ शी डिड इट very thriftily, thriftily means very economically, she spent the money वेरी केयरफुली, जो उसको पैसा मिलता है वो बड़े ध्यान से, इकोनॉमिकली, कंजूसी के साथ, जिसको कहते हैं कि बड़े सोच समझ के साथ वो पैसे अपने खर्च करती, उसमें से पैसे सेव करती। वॉट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे, जो भी इसको कॉइन्स मिलते वो बड़े उनको संभाल के रख लेती। रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन, हर तरह की टेम्पटेशन, उसके मन में लालच या कोई भी अट्रैक्शन आई तो उसने उसको कंट्रोल करा, रेजिस्ट करा। ना उसने कोई खाने की चीज ली, ईटेबल्स ली, ना टॉयज लिए, ना बैलून्स लिए, ना ही उसने कोई और ऐसी चीज ली जिसके ऊपर के पैसे खर्च होते। एंड इन दिस वे शी सेव्ड 60 पैसा। How difficult it had been, particularly that day at the village fair, but she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round, even though she had the money. And there was fear in the village also during those days, and it was very difficult for her to resist herself, अपने आप को कंट्रोल करना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा था उस टाइम पे। लेकिन शी वॉज वेरी मच अट्रैक्टेड फॉर द मैरी गो राउंड, झूले लगे हुए थे, झूले लेने के लिए उसका मन ललचा रहा था, चाहे कि उसके पास पैसे भी थे, बट शी कंट्रोल्ड हर सेल्फ एंड she saved the money. Strong desire she had to ride the merry-go-round, even though she had the money, but she had resolutely stifled, means अपने आप को उसने suppress किया, अपने desire को control करा, and that was with determination because she wanted to save the money for her traveling. After she had enough money saved, her next problem was how to slip out of the house without her mother's knowledge. अब पैसे कलेक्ट हो गए तो अब प्रॉब्लम क्या थी कि बिना मदर को पता चले वो कैसे घर से जाएगी, कैसे स्लिप करेगी घर से कि इस जर्नी के लिए, कि शी डिड नॉट वांट टू टेल इट टू हर मदर आल्सो, बट शी मैनेज्ड दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी। लेकिन उसको कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई, शी मैनेज्ड इट। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 or so. Most of the time after the lunch her mother used to take a nap, वो सोते थे, अपना रेस्ट करते थे, और मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रॉम 1 to 4 she was taking rest. Veli always used these hours for her excursions, as she stood looking from the doorway of her house, or sometimes even ventured out into the village. Today these same hours could be used for her first excursion outside the village. तो क्या करती थी वो उस टाइम को, उन घंटों को जबकि उसकी मदर रेस्ट कर रही होती थी, मोस्ट ऑफ द टाइम शी स्टूड लुकिंग एट द डोरवे, वो अपने एक्सकर्शन के लिए, एक्सकर्शन समझते हो ना, पिकनिक वगैरह के लिए, आप एंजॉय के लिए अपना टाइम, जॉयफुल टाइम स्पेंड करते हो, तो वो इस टाइम को कैसे यूज करती थी, या तो वो दरवाजे के ऊपर अपने खड़ी रहती, इधर उधर हैपनिंग्स देखती रहती, या फिर वो कई बार क्या करती, समटाइम्स इवन वेंचर्ड आउट इनटू द विलेज,
कि कई बार वो विलेज में इधर उधर घूमने चले जाती, वेंचर्स मीन्स कुछ और एडवेंचरस एक्टिविटीज अपनी करने के लिए वो गांव में इधर उधर घूमना शुरू कर देती। एंड आज उसने क्या सोचा कि वो इन 3 घंटों को किस चीज के लिए यूज करेगी। फर्स्ट टाइम शी विल गो फॉर द एक्सकर्शन आउटसाइड द विलेज, गांव से बाहर जाएगी, having the bus journey. The bus rolled on, now cutting across a bare landscape, now rushing through a tiny hamlet and past an odd wayside shop. Sometimes the bus seemed on the point of gobbling up another vehicle that was coming towards them, or a pedestrian crossing the road. आपको बता रहे हैं उसकी जर्नी कैसे चल रही है कि बस जो थी वो आगे आगे बढ़ती गई, कभी तो बहुत अच्छे से इसको लैंडस्केप नजर आ रहे हैं, और बस जो है कभी ऑड वे में चल रही है, आसपास शॉप्स हैं, कभी बस जो है वो ऐसे लग रहा है कि इट्स गोइंग टू गॉबल अनदर व्हीकल, बिल्कुल पास जाके दूसरे व्हीकल के जब ब्रेक लगती है तो ऐसे लगता है कि दूसरे व्हीकल वो गॉबल निगलने जा रहा है, मतलब उसके साथ स्ट्राइक करने जा रहा है। और कभी ऐसा लग रहा था कोई पेडेस्ट्रियन, रोड के ऊपर चलने वाले जो लोग हैं उनको स्ट्राइक करने जा रहा है, मतलब एकदम स्पीड से चल रही होती है बस और ब्रेक लग जाती है बिकॉज शी वॉज ट्रेवलिंग फर्स्ट टाइम और उसको ऐसा फील हो रहा था। बट लो, somehow it passed on smoothly, leaving all obstacles safely behind, कि सारा कुछ क्रॉस करते हुए आफ्टर ऑल बस जो थी वो सेफली पहुंच जाती है। ट्रीज केम रनिंग टुवर्ड्स देम बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच्ड देम, और ऐसे लग रहा था कि ट्रीज भी भागते हुए उसकी तरफ आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही बस रुकती तो वो ट्रीज भी रुक जाते थे। एंड simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction. और जैसे ही बस रुकती तो ऐसे लगता है ट्रीज भी रुक गए, और फिर से जब बस चलती तो ऐसे लगता है वो फिर से डायरेक्शन लेते हुए ट्रीज ने चलना स्टार्ट कर दिया। सडनली वैली क्लैप्ड हर हैंड्स विद ग्ली, और अचानक क्या हुआ, वैली ने क्लैपिंग करनी शुरू कर दी, बड़ा खुश हो रही है, विद ग्ली मींस विद हैप्पीनेस, शी स्टार्टेड क्लैपिंग। अ यंग काउ, टेल हाई इन द एयर, वाज रनिंग वेरी फास्ट राइट इन द मिडल ऑफ द रोड। क्या देखती है, उसको सीन बड़ा अट्रैक्टिव लगता है और बड़ी खुश होती है देखकर कि एक काओ जिसकी टेल ऊपर हवा में लहर रही थी, भागती हुई कहते वो सड़क के बीच में आ जाती है, राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, बिल्कुल बस के आगे, सामने बस के। द बस स्लो टू अ क्रॉल, और बस जो थी वो धीरे धीरे क्रॉल करते हुए रुक जाती है। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली अगेन एंड अगेन। अब वो कौ है वो बस के सड़क के बीच में खड़ी है, बस उसने रोक दी स्लो करते हुए और वो बार बार हॉर्न बजा रहा है, और शी इज एंजॉइंग दिस सीन एंड शी फेल्ट वेरी हैप्पी एंड स्टार्टेड क्लैपिंग। बट द मोर ही हॉन्क्ड द मोर फ्राइटन्ड द एनिमल बिकेम एंड द फास्टर इट गैलप्ड। जितनी जोर से वो हॉर्न बजा रहा है उतना कौ जो है वो फ्राइटन्ड, डर रही है, डर जाती है उस हॉर्न की आवाज को सुनकर, और उतना ही वो तेजी से सड़क के ऊपर खड़ी जंप कर रही है। गैलप मींस जंपिंग, ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और वो इधर उधर नहीं हट रही, सड़क के बीच में बस के आगे खड़ी है कौ और वहीं पर जंप करे जा रही है। एंड शी इज एंजॉइंग दैट सीन कि ड्राइवर जो है वो बार बार हॉर्न दे रहा है और वो वहीं पे जंप करे जा रही है। Somehow this was very funny to Veli. She laughed and laughed until there were tears in her eyes. She laughed so much that there were tears in her eyes. बहुत ज्यादा वो हंसती है इस सीन को देखकर, इतना खुश होती है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। Hey lady, haven't you laughed enough? Called the conductor. Better save some more for tomorrow. तो कंडक्टर उसको जब देखता है कहता है कि इतना हंसी जा रही हो, इतना हंसी जा रही हो, कुछ तो बचा लो कल के लिए भी, इतना मत हंसो। At last the cow moved off the road and soon the bus came to a railroad crossing. और आखिरकार वो कौ जो थी पीछे हटी और बस जो थी आगे बढ़ी और रेल रोड क्रॉसिंग के ऊपर पहुंच गई। A speck of a train could be seen in the distance, और दूरी से एक्चुअली जब ट्रैक क्रॉस कर रही है बस दूर से उनको ट्रेन्स नजर आ रही हैं। ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर, जैसे जैसे पास आ रही है तो उनका साइज बड़ा लग रहा है। Then it rushed past the crossing gate with a tremendous roar and rattle, shaking the bus. और जैसे ही वो ट्रेन वहां से क्रॉस करती है, आप कई बार जा रहे हो तो फाटक के ऊपर आप खड़े हो जाते हो, फाटक बंद है, तो आप जब ट्रेन वहां से क्रॉस करती है तो आपको शेकिंग सा लगता है ना, कि जैसे जमीन जो है वो हिल रही होती है। द सेम फीलिंग शी हैड, कि जैसे ही वहां से ट्रेन जो है वो क्रॉस करी एंड विद द ट्रेमेंडस रोर एंड रेटल, बहुत शोर के साथ, शेकिंग द बस, उसको ऐसा क्या फील हुआ कि बस जो थी वो शेक कर रही थी। देन द बस वेंट ऑन एंड पास द ट्रेन स्टेशन, देन द बस वेंट फॉरवर्ड, फ्रॉम देयर इट ट्रेवर्स्ड अ बिजी वेल लेड आउट शॉपिंग स्ट्रीट, और वहां से बस जो थी वो आगे एक बहुत बिजी
शॉपिंग स्ट्रीट के बीच में क्रॉस कर रही है, टर्निंग एंटर्ड अ वाइडर थॉरोफेयर, और वहां से टर्न करते हुए और एक बिजी पब्लिक रोड आ जाती है जहां पर की बस पहुंच जाती है. थॉरोफेयर मींस अ पब्लिक रोड, बिजी रोड. सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, what glittering displays of cloths and other merchandise, such big crowds. See the sign of exclamation given. She was surprised. She wondered to look at all these things in the market, कि वहां पर शॉपिंग एरिया है और स्ट्रीट्स के अंदर बहुत ग्लिटरिंग शॉप्स हैं, चमकते हुए वहां कपड़े टंगे हुए हैं, बहुत सी ब्राइट चीजें वहां टंगी हुई हैं. एंड शी फेल्ट वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू लुक एट ऑल दीज थिंग्स. क्राउड है वहां पर. स्ट्रक डम विद वंडर, वेली गैप्ड एट एवरीथिंग. गहरा सांस लेकर वो सारी चीजों को देख रही है. और शी स्ट्रक डम मीन्स बिल्कुल उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकले, इतनी ज्यादा वो हैरान परेशान सी होकर, फीलिंग वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड टू लुक एट ऑल दीज थिंग्स बिकॉज शी हैड नेवर सीन ऑल दीज टाइप ऑफ थिंग्स इन द विलेज. देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वेली. दैट वाज द लास्ट स्टॉपेज ऑफ द बस. और क्या हुआ, जैसे ही बस रुकी सारे वहां से बस में से उतर गए, सिर्फ वैली वहां बस के अंदर बैठी है. हे लेडी सेड द कंडक्टर, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ. सी उसके बाद वो उसको लेडी कह के बुला रहा है, मैडम नहीं कह रहा. जब उसने कहा कि आप मुझे मैडम मत कहो, तो अब उसको कहते हैं आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ, कि क्या तुम नीचे उतरने नहीं जाओगी. दिस इज एज फार एज योर 30 पैसा टेक्स यू, कि यहीं तक ही लेके आना था. कहते हैं आपके 30 पैसा ने, मतलब आपके 30 पैसा जो आपने दिए थे किराया वो खत्म हो गया है, यही बस का लास्ट स्टॉपेज है और यहां तक ही आपका डेस्टिनेशन था. नो, वेली सेड, आई एम गोइंग बैक ऑन द सेम बस.